Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Weekly, happening or done once in a week. Weekly को हम हिंदी में साप्ताहिक कहते हैं, उर्दू में हफ्तावर, तेलुगु में वारानिकोसारी. फॉर एग्जाम्पल, द मैगजीन इज पब्लिश्ड वीकली. नेक्स्ट वर्ड इज वियर्ड, सजेस्टिंग समथिंग सुपरनैचुरल और अनअर्थली, वेरी स्ट्रेंज. वियर्ड को हम हिंदी में और उर्दू में अजीब कहते हैं, तेलुगु में असहजమైన. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैंशन हैड अ वियर्ड एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वर्ड इज वेलफेयर, द हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ पर्सन और ग्रुप. वेलफेयर को हम हिंदी में समृद्धि कहते हैं, उर्दू में भलाई, तेलुगु में सुखमु. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स. नेक्स्ट वर्ड इज वेल, इन अ गुड और सेटिस्फैक्ट्री मैनर, इन गुड हेल्थ. वेल को हम हिंदी में अच्छे से कहते हैं, उर्दू में अच्छे तरीके से, तेलुगु में बागा. फॉर एग्जाम्पल, शी परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम. नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टर्न, relating to the west or western countries and their cultures. वेस्टर्न को हम हिंदी में पश्चिमी कहते हैं, उर्दू में मगरिबी, तेलुगु में पश्चिमा. फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न म्यूजिक हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल कंपेयर्ड टू ईस्टर्न म्यूजिक. नेक्स्ट वर्ड इज वेट, कवर्ड और सैचुरेटेड विथ लिक्विड सच एज वाटर. वेट को हम हिंदी में और उर्दू में गीला कहते हैं, तेलुगु में तड़ी. फॉर एग्जाम्पल, don't forget to bring an umbrella. It looks like it's going to be wet outside. Next word is wheeze, a whistling or rattling sound in the chest during breathing, often associated with asthma or other respiratory conditions. Wheeze को हम हिंदी में जोर जोर से सांस लेना कहते हैं, उर्दू में खर्राटे मारना, तेलुगु में श्वासलो गुरका. For example, he began to wheeze after running for a long time. Next word is whensoever, at any time, whenever. whensoever को हम हिंदी में जब चाहे कहते हैं, उर्दू में जब चाहे, तेलुगु में एप्पुडैना. For example, you can call me whensoever you need assistance. Next word is whenever, at any or every time that. whenever को हम हिंदी में और उर्दू में जब भी कहते हैं, तेलुगु में एप्पुडैना. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कम टू विजिट whenever you like. नेक्स्ट वर्ड इज whereabouts, द प्लेस where a person or thing is. whereabouts को हम हिंदी में कहाँ कहते हैं, उर्दू में कहाँ कहाँ, तेलुगु में एक्कड़ा. फॉर एग्जाम्पल, his whereabouts are unknown, he hasn't been seen for days. Next word is whereas, in contrast or comparison with the fact that. whereas को हम हिंदी में और उर्दू में जबकि कहते हैं, तेलुगु में कागा. फॉर एग्जाम्पल, she likes tea whereas her brother prefers coffee. Next word is whinge, to complain or whine persistently. whinge को हम हिंदी में विलाप कहते हैं, उर्दू में शिकायत करना, तेलुगु में रच्चा पेट्टे. फॉर एग्जाम्पल, stop whinging and try to find a solution to the problem. Next word is whirlpool, a powerful circular current of water. whirlpool को हम हिंदी में जलभ्रम कहते हैं, उर्दू में भंवर, तेलुगु में सुडीगुंडम. For example, the boat was caught in a whirlpool and was pulled underwater. Next word is whisper, to speak very softly or quietly. whisper को हम हिंदी में फुसफुसाना कहते हैं, उर्दू में काना पुसी, तेलुगु में गुसगुसलू. For example, they had to whisper during the meeting to avoid disturbing others. Next word is whistle, a clear high-pitched sound produced by forcing breath through a small hole between one's lips or teeth. whistle को हम हिंदी में और उर्दू में सीटी कहते हैं, तेलुगु में whistle. For example, the referee blew the whistle to signal the end of the game. Next word is white collar, relating to the work done or those who work in an office or other professional environment. White collar को हम हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, उर्दू में दफ्तर की मुलाजिमत, तेलुगु में white collar. For example, he has a white collar job in a multinational company. Next word is whoever, any person or persons who. whoever को हम हिंदी में जो कोई भी कहते हैं, उर्दू में जो भी,
तेलुगु में ever आईना. For example, whoever left their umbrella in the hallway, please come and collect it. Next word is wholehearted, showing or characterized by sincere and enthusiastic commitment. Wholehearted को हम हिंदी में पूर्ण हृदय से कहते हैं, उर्दू में पूरे दिल से, तेलुगु में हृदय पूर्वका. For example, she gave a wholehearted effort in completing the project. Next word is wholesale, the sale of goods in a large quantities, typically to a retailer for resale to consumers. होलसेल को हम हिंदी में थोक कहते हैं, उर्दू में बड़ी मिकदार में बेचना, तेलुगु में टोकू. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर ऑफर्स होलसेल प्राइसेस फॉर बल्क परचेजेस. नेक्स्ट वर्ड इज होलसम, कंड्यूसिव टू और सजेस्टिव ऑफ गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग. होलसम को हम हिंदी में पौष्टिक कहते हैं, उर्दू में सेहतमंद, तेलुगु में आरोग्यकरमैना. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ होलसम लाइफस्टाइल. नेक्स्ट वर्ड इज विक्ड, ईविल और मॉरली रॉन्ग. विक्ड को हम हिंदी में शैतानी कहते हैं, उर्दू में शैतानी, तेलुगु में दुष्टमैना. फॉर एग्जाम्पल, द विक्ड विलेन प्लॉटेड टू टेक ओवर द किंगडम. नेक्स्ट वर्ड इज वाइड, ऑफ ग्रेट और मोर देन एवरेज विड्थ, ब्रॉड. वाइड को हम हिंदी में और उर्दू में चौड़ा कहते हैं, तेलुगु में विस्तारमैना. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर वॉज वाइड एंड इट टुक अ लॉन्ग ब्रिज टू क्रॉस इट. नेक्स्ट वर्ड इज वाइडन, टू मेक और बिकम वाइडर. वाइडन को हम हिंदी में और उर्दू में फैलाना कहते हैं, तेलुगु में विस्तरिंचेंदुकु. फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज वाइडन टू अकोमोडेट इंक्रीज ट्रैफिक. Next word is widespread, existing or happening over a large area or among many people. Widespread को हम हिंदी में प्रचारित कहते हैं, उर्दू में वसी, तेलुगु में प्रसारमैना. For example, the news of the epidemic was widespread, causing concern. Next word is width, the measurement or extent of something from side to side. width को हम हिंदी में और उर्दू में चौड़ाई कहते हैं, तेलुगु में वेडल्पू. For example, the width of the river was difficult to gauge from a distance. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.